Hello, my dear students. I hope you all are doing well. I'm your chemistry teacher Diksha, and I welcome you all to our lesson number 4, Structure of the Atom. So, students, till now we know that atoms are not indivisible. In fact, they have subatomic particles in them, right? And students, in the previous video lesson, we also understood that these three subatomic particles, when they were discovered, after that, scientists tried to understand the arrangement of these subatomic particles in the atom. And that's why they gave the models of the atom. So we saw the Thomson's plum pudding model and the Rutherford's model, right? And both of them, they contributed a little bit in understanding how the subatomic particles are arranged. Now, students, in this particular video lesson, we are going to extend our discussion and we are going to understand Niels Bohr's atomic model. Okay, so there was a drawback in the Rutherford's model. Kya drawback tha, students? That if electrons are moving in a particular shell or orbit, then if they are revolving around the nucleus, then they radiate energy. That means they lose energy. तो अगर कोई भी particle lose करता है energy, तो वो क्या करेगा? They will spiral around the nucleus and they will finally fall inside the nucleus. तो रदरफोर्ड इस तरह का जो ड्रॉबैक है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे. That's why Neil Bohr gave his model of atom. So we'll understand this model and then we'll see how electrons are distributed in an atom. Okay, and finally students will discuss a very important concept, a very important term, valency. Okay, so let's first begin with our discussion by discussing the model of the atom by Neil Bohr. Okay, so students, Niels Bohr, he proposed the model in 1913, and what he saw that Rutherford's model was okay, but there was one drawback. तो उस drawback को उसने address किया. क्या कहा गया students? Now he said that electrons revolve around the nucleus in fixed discrete orbits. Now discrete orbits क्यों कहा गया students? Because हर orbit का जो एनर्जी है वो फिक्स्ड है. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर न्यूक्लियस. ओके, this is the nucleus and inside the nucleus we have positive charge. Around the nucleus we have the first orbit. Okay, this orbit has a fixed energy. इस orbit की फिक्स्ड एनर्जी, उसके बाद जो ऑर्बिट होगा उसकी भी एक अपनी एनर्जी होगी, फिक्स्ड एनर्जी होगी. ठीक है, तो ये जो फिक्स्ड एनर्जी वाले ऑर्बिट होते हैं इन्हें हम कहते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स. इलेक्ट्रॉन्स इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं और जब तक ये इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं तब तक ये अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं. सो दे डू नॉट lose or radiate energy while they are revolving in these discrete orbits. All right. Now students, in orbits को और क्या नाम दिया गया? These are known as shells or energy levels. So either you can call them orbits or shells or energy levels. All the three terms are the same. ठीक है? Now these energy levels are represented in two ways. ठीक है? Either we can represent them by letters K, L, M, N, or we can represent them by numbers 1, 2, 3, 4. What I mean to say is that this is the model of the atom. This is how an atom looks. In the very internal part, very small volume nucleus, inside which we have protons and neutrons. तो nucleus के अंदर हमारे पास है protons, neutrons. जो न्यूक्लियस है हमारा वो पॉजिटिवली चार्ज है बिकॉज न्यूट्रॉन्स डोंट हैव एनी चार्ज. ठीक है, सो न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है. न्यूक्लियस के अंदर ही पूरे एटम का मास कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब पूरे एटम का मास यहाँ बीच में न्यूक्लियस के अंदर है बिकॉज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर हैवियर. इलेक्ट्रॉन्स के मास को हम नेग्लिजिबल मानते हैं. ठीक है, सो ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं एनर्जी लेवल्स और शेल्स. सो द फर्स्ट शेल इज नोन एज के शेल. जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला शेल है उसे क्या कहा गया? के शेल. और वी कैन राइट इट n इक्वल टू 1. तो इन शेल्स को हम स्मॉल लेटर n से डिनोट करते हैं और पहला शेल हो गया n इक्वल टू 1 और द के शेल. उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है हमारा l शेल और n इक्वल टू 2, M shell n equal to 3, N shell
दैट इज n इक्वल टू 4. उसके आगे भी आप ऑर्बिट्स ऐड कर सकते हैं. फिफ्थ शेल n इक्वल टू 5, ओके, और k l m n and so on, okay. N o p, this is o shell. So k l m n o p q, like that we can increase. Numbers will also increase, n equal to 1 2 3 4 5 6 and so on. Got it, students? So this model, it removed that drawback of Rutherford's model. अब यहाँ पे कोई भी drawback नहीं है. But now the question is, now this drawback is over. Now, Bohr's model of atom is perfect in every sense. The question arises that now electrons, can they be filled in any of the shell? Can any electron be here, then here? Or how many electrons are there in each shell? Can many electrons fill in a single shell? यहाँ पे बहुत सारे electrons हो, बाहर only one electron है. So how many electrons occupy a particular shell? That was the problem. So this problem was solved by Bohr and Bury, who gave their rules for the distribution of electrons. So electrons किस तरह से atom के अंदर distributed रहते हैं, उसके कुछ rules है. So if you follow those rules, you will understand how they are distributed. The first rule says the 2n square rule, okay. The maximum number of electrons present in a shell is given by the formula 2n square. तो यहाँ n क्या है students? n is the ऑर्बिट नंबर और द एनर्जी लेवल इंडेक्स. तो जो शेल का नंबर है स्टूडेंट्स, वो ही क्या है? n है. सो इफ यू आर पुटिंग n इक्वल टू 1, ओके, यानी के शेल की जो n की वैल्यू है वो क्या है? 1 है. दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट. तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई होते हैं स्टूडेंट्स? 2n स्क्वायर. सो 2 into 1 square, that is 2. So in the first shell only 2 electrons are allowed. 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में नहीं ला सकते, ठीक है. In the L shell, the maximum electrons that can occupy the second shell is 8. So 2 into 2 square, that is 8. The third shell has the n equal to 3 value, okay. So put it in the formula for 2n square. So 2n square में हम n की value 3 रखेंगे. 2 into 3 square, that will be 18. 3 square is 9, 9 into 2, 18. And the fourth shell can have a maximum of 32 electrons. इतने accommodate कर सकता है, ठीक है. This is the maximum number. 32 से ज़्यादा fourth shell में electrons नहीं आएंगे, ठीक है. So again, if you want to know the maximum number of electrons in any shell, if I say n equal to say 5, नेक्स्ट शेल जो है उसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? सो 2 into 5 square. So 5 square is 25, 25 into 2, 50 electrons, okay. So you can calculate for any shell, right? Now the second rule says the maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit. Now ये समझने वाली बात है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये दोनों अलग बातें हैं, ठीक है. आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब ये है कि ये मेरा एटम है, इसमें 3 शेल्स हैं, ठीक है. फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकेंड में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फुली फिल्ड हो गया. थर्ड वाले में, थर्ड जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर जो एटम है, इट ट्राइज टू गेट 8 इलेक्ट्रॉन्स. थर्ड शेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. द एटम ट्राइज टू गेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल. सो यू कैन जस्ट सी फ्रॉम दिस डेटा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये जो एटम्स है आप देख सकते हैं इनका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. यहाँ पे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? फर्स्ट शेल में. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं ना, अकोमोडेट हो सकते हैं. So 2 electrons are there in helium in the first shell. In neon, neon has total number of 10 electrons. So the first 2 electrons will go in the first shell and the rest 8 electrons will go in the outermost second shell. Argon के पास यहाँ 18 electrons है. So those 18 electrons, how it is accommodated? In the first shell we have 2, in the second shell we have 8, and in the outermost, सबसे बाहर वाला जो shell है, third shell, it has 8 electrons. In the same way, krypton, if you see, in the outermost shell, it has 8 electrons. Xenon also, outermost shell has 8 electrons, okay. So this
outermost shell having 8 electrons is of very much importance. क्यों होता है students ऐसा? Because this gives extra stability to the atom. कोई भी एटम क्या अचीव करना चाहता है स्टूडेंट? स्टेबिलिटी. एवरी एटम वांट्स टू बी इन द वेरी स्टेबल स्टेट. तो स्टेबल स्टेट पाने के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स? अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे एटम को बहुत स्टेबिलिटी मिलती है, राइट? आउटर मोस्ट ऑर्बिट शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स. आउटर मोस्ट शेल कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, लास्ट वन इज the shells are always filled in a stepwise manner. तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे आपके एटम के पास 3 शेल्स है, सो ऐसा नहीं होगा कि थर्ड शेल पहले फिल हो गया फिर फर्स्ट शेल फिल हुआ है. नो, स्टेप वाइज मैनर. दैट मीन्स द फर्स्ट शेल विल फिल फर्स्ट, then the second, then the third. तो यहाँ पे electrons are not filled in the next level unless previous shells are filled. तो सबसे पहले first shell fill होगा. Okay, so this is the nucleus. Okay, first shell, second shell, third shell. Okay, तो अगर आपके एटम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम, तो वो कैसे फिल होंगे? 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में जाएंगे और अब कितने बचे? 10 माइनस 2 8. सो नेक्स्ट शेल में अब जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स. गॉट इट स्टूडेंट्स? तो कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे सेकंड शेल पहले फिल हो रहा है फिर फर्स्ट शेल. नो, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट शेल. इफ दैट इज फिल्ड देन मूव ऑन टू द सेकंड शेल. इफ दैट इज ऑल्सो फिल्ड देन मूव ऑन टू द थर्ड शेल. सो इफ एनी एटम इज हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन्स, सो यहाँ पे 2 plus 8 10 इलेक्ट्रॉन्स तो फिल हो गए. वेयर विल दैट 1 इलेक्ट्रॉन गो? इन द थर्ड शेल. दैट 1 इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई द थर्ड शेल. तो इस तरह से फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की in the orbits. Understood? So these rules you have to keep in mind, how to fill the electrons in different levels. Got it students? Now students, we come to a very important term which is known as valency. वैलेंसी एक ऐसा टर्म है जो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि एटम्स रिएक्शन क्यों करते हैं. इन द प्रीवियस क्लास स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस चैप्टर आई टोल्ड यू कि यहाँ पे जो एटम्स है वो आयंस क्यों बनते हैं, राइट? एटम्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. देन दे व्हाई डू दे टर्न इनटू आयंस? वो चार्ज स्पीशीज क्यों अपने आप को बनाते हैं? उसका जो रीजन है वो है वैलेंसी. ठीक है, इसको समझते हैं. सबसे पहले हम समझते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है. व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? whatever electrons are there in the outermost shell, number of electrons which are present in the outermost shell of the atom, they are known as valence electron. ठीक है, समझ आ गया? So if I say sodium, sodium has 11 electrons and 11 protons in the atom. Okay, so those 11 protons are there in the nucleus. ठीक है, न्यूक्लियस से तो बाहर नहीं निकलेंगे, प्रोटॉन्स हमेशा न्यूक्लियस में ही रहते हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस. तो ये जो 11 प्रोटॉन्स है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है स्टूडेंट्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, 8 electrons are here moving in the second shell, and then we are left with 1. So 1 electron is moving in the थर्ड शेल. ओके, तो यहाँ पे सोडियम की जो वैलेंसी है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने स्टूडेंट्स? व्हाट आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सोडियम एटम्स? 1. एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्व कर रहा है. सो व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम. गॉट इट? नाउ व्हाट इज वैलेंसी? ये ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स. वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो ऐसा बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है. ठीक है, वैलेंसी क्या होती है स्टूडेंट्स? किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी ऑफ दैट एटम. नाउ कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? इट्स टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स विथ एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स. मतलब किसी भी एटम की क्या टेंडेंसी होती है, वो कितने और एटम से रिएक्ट कर सकता है. वो कोई से भी एटम्स हो सकते हैं, एटम्स खुद के भी एटम्स हो सकते हैं और दूसरे एलिमेंट के एटम्स भी हो सकते हैं. सो हाउ मेनी एटम्स इट इज केपेबल ऑफ रिएक्टिंग, दैट इज नोन एज द वैलेंसी ऑफ दैट एटम. कितने और एटम से कोई एटम कंबाइन कर सकता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उस एटम की
वैलेंसी। तो अब ये वैलेंसी कैसे पता करते हैं स्टूडेंट्स? कोई एटम किसी दूसरे कितने और एटम से रिएक्ट करता है, ये कैसे पता चलता है? वील अंडरस्टैंड बाय दिस। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट statement. Atoms attempt to attain a fully filled outermost shell, that is an octet. So every atom tries to get this thing. ठीक है? क्यों? Because the atoms are stable, very stable when they have 8 electrons in their outermost shell. Okay? What does that mean, students? यहाँ देखो, ये है 2 electrons in the first shell. So this atom is the helium atom. ये एटम कौन सा? हीलियम का एटम है। हीलियम के एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे स्टूडेंट्स? इन द फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल कर सकते हो आप? 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में आ ही नहीं सकते। इसका मतलब ये एटम है जो हीलियम का, ये फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड। तो जो फुली फिल्ड एटम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब क्या हुआ? कि दे आर फुल, ठीक है, दे डोंट नीड नाउ एनी मोर इलेक्ट्रॉन्स। जब उनके शेल पूरे भरे हुए तो क्या उन्हें और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो स्टेबल है, अपना खुश है, ठीक है। सो ऑल द एटम्स वांट दिस स्टेबिलिटी, कि हमारा आउटर मोस्ट शेल फुल हो जाए या फिर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हम स्टेबल हो जाएंगे, फिर हमें रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। सो व्हाई atoms react with other atoms? So that they can achieve this octet. Okay, they want this octet. या तो उनका outermost shell पूरा भर जाए या फिर उनके outermost shell में 8 electrons आ जाए, ठीक है। So this is also stable, students. Just see how many electrons in the outer. अब यहाँ पे 2 shells हैं, तो यहाँ पे हमें second shell पे ध्यान देना है, because second shell is the outermost shell. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 electrons, so that is also stable. अब यहां पे देखो 3 शेल्स है, 1 2 3। अब हमें थर्ड शेल पे ध्यान देना है, बिकॉज नाउ द थर्ड शेल इज द आउटर मोस्ट शेल। अब इनर शेल्स पे ध्यान नहीं देना। तो थर्ड शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दिस इज ऑल्सो स्टेबल। सो इन द केस ऑफ हीलियम ड्यूप्लेट, इसे बोलते हैं ड्यूप्लेट, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल, दिस इज स्टेबल, एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स इन अदर शेल, सेकेंड थर्ड फोर्थ। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर आ जाए तो वो एटम बहुत स्टेबल हो जाता है और वो फिर किसी से रिएक्ट नहीं करता है, बिकॉज देर इज नो नीड। जब वो स्टेबल हो गया तो वो क्यों रिएक्ट करेगा? कोई भी एटम रिएक्शन क्यों करता है? दूसरे एटम से कंबाइन क्यों करता है? ताकि उसका ऑक्टेट अचीव हो सके। गॉट इट स्टूडेंट्स? दिस इज द होल थिंग, दिस इज व्हाई एटम्स बिकम आयंस, ठीक है। So atoms of elements having a completely filled outermost shell show a very little chemical activity. तो chemical activity मतलब reaction, किसी और atom से वो react ही नहीं करेगा, क्योंकि वो fully filled है, वो भरा हुआ है, वो stable है, तो वो क्यों react करेगा, right? So it doesn't need, that atom doesn't need any more electrons. Okay, so their combining capacity और valency is 0. तो valency क्या होती है? Tendency टू कंबाइन विथ अदर एटम्स। सो वो टेंडेंसी 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स है उसके आउटरमोस्ट शेल में। सो व्हाई विल दैट एटम रिएक्ट विथ अदर एटम्स? ओके, सो उनकी वैलेंसी क्या होती है? 0। जैसे कि हीलियम, नियॉन, ये इनर्ट एटम्स होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल भरे हुए, ठीक है। तो ये कभी भी रिएक्शन नहीं देते हैं और एटम्स के साथ। Got it? So this concept is very important, students. Hopefully now you understand why reactions occur, why atoms react with other atoms to achieve this octet. Okay? Now students, let's take an example. एक example से आपको और clear हो जाएगा. This is the sodium atom. ये nucleus है, first shell, second shell, third shell. It has 11 electrons. 11 protons है, दोनों बराबर है. 11 protons are there in the इनसाइड द न्यूक्लियस। उसका कोई काम नहीं, वो अंदर बैठे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है, प्रोटॉन्स अंदर है 11, उसका कोई काम नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व हो रहे हैं शेल्स में। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2, ठीक है। 11 में से just subtract 2, we have 9 electrons. So 9 electrons है, पर second shell में 9 electrons नहीं आ सकते. What is the maximum number of electrons accommodated in second shell? 8. So 1 2
3 4 5 6 7 8। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए? सेकेंड शेल में। बचा एक इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है? थर्ड शेल में, जिसे हम कहते हैं वेलेंस इलेक्ट्रॉन। सो ये एक वेलेंस इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में रिवॉल्व कर रहा है। अब आते हैं क्लोरीन के एटम के ऊपर। क्लोरीन के एटम में है 17 इलेक्ट्रॉन्स एंड 17 प्रोटॉन्स। तो यहाँ 17 प्रोटॉन्स जो है वो तो न्यूक्लियस के अंदर है। 17 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है स्टूडेंट्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड शेल। ओके, हाउ मेनी लेफ्ट स्टूडेंट्स? 7। 7 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बचे हैं। 2 + 8 is 10। So 17 - 10, 7 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स क्लोरीन के जो बाकी बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन्स है थर्ड शेल में अकोमोडेट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। राइट नाउ स्टूडेंट्स, अब क्या है? क्लोरीन का जो एटम है, इज इट स्टेबल? नो। स्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट कहां हुआ है? 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन को कितने चाहिए? 8, है ना। यहां पे जो सोडियम है उसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पर उसको वो चाहिए ही नहीं। उसको क्या चाहिए? आउटर मोस्ट शेल भरा हुआ हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो क्या वो 7 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करे? किससे लेगा 7 इलेक्ट्रॉन्स? दैट मीन्स सोडियम हैज टू रिएक्ट विथ 7 अदर एटम्स। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। ठीक है, 7 और एटम्स ढूंढने पड़ेंगे, उन्हें मनाना पड़ेगा, दे दो मुझे इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो इंस्टेड सोडियम क्या करता है? इसके पास ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसको दे देता है। जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो आप देखिए अब सेकेंड शेल जो है सोडियम का वो ऑक्टेट पूरा कंप्लीट है। द सेकेंड शेल इज कंप्लीटली फिल्ड, 8 इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट है। सो सोडियम अचीव्स इट्स ऑक्टेट बाय रिमूविंग दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन अचीव्स द ऑक्टेट बाय एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहां पे क्लोरीन का जो ऑक्टेट है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, तो वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेगा और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो बोथ ऑफ देम, सोडियम एंड क्लोरीन, दे कैन अचीव देयर स्टेबिलिटी, देयर ऑक्टेट बाय डूइंग दिस। क्या करते हैं? सोडियम होता है वो अपना आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? क्लोरीन को। ठीक है, अब होता क्या है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन चला गया। सो नाउ द सोडियम एटम हैज 11 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। Chlorine atom now has 17 protons and 18 electrons. तो यहां पे इम्बैलेंस हो गया ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। यहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, यहां पे एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। दैट्स व्हाई दीज एटम्स बिकम ions. Okay, this is what I was telling you, that we will discuss this thing in the again coming chapters, that how atoms become ions. आयंस क्यों बनते हैं एटम्स? ताकि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके और स्टेबिलिटी अचीव कर सके। तो यहाँ पे सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया खुशी खुशी, क्लोरीन ने खुशी खुशी अपना ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। तो दोनों अब खुश है। इसका भी जो आउटर मोस्ट शेल है वो भरा हुआ है 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसका भी आउटर मोस्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों के आउटर मोस्ट शेल सही है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। बट इन डूइंग सो सोडियम जो एटम है वो सोडियम आयन बन गया पॉजिटिवली चार्ज, और क्लोरीन एटम बन गया क्लोराइड आयन नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो अब जब ये दो आयंस बने तो यहाँ पे एक रिएक्शन हुआ है स्टूडेंट्स। इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, तो अब ये दोनों क्या हो गए? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और क्या बन जाता है? सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड क्या? स्टेबल है। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन ने क्यों रिएक्शन किया? ताकि वो एक कंपाउंड बना सके और स्टेबिलिटी अचीव कर सके। दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। ये इलेक्ट्रॉन्स को देने और लेने से ही क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स बनते हैं और कंपाउंड्स बनते हैं, और बॉन्डिंग होती है। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में क्या हुई? बॉन्डिंग हुई। वो आपस में क्या हुआ? अट्रैक्ट हुए, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड। गॉट इट? एंड दे फॉर्म्ड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सोडियम क्लोराइड कंपाउंड। गॉट इट? तो ऐसे ही और भी कंपाउंड्स बनते हैं स्टूडेंट्स, पर सबसे पहले उसको समझने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द वैलेंसीज ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स। ठीक है, सो हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन
के पास एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 1। एटॉमिक नंबर के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, पर अभी के लिए आपको क्या समझना है, हाइड्रोजन हैज 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। सो दिस 1 इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इन द के शेल। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको समझ में आना चाहिए। फर्स्ट शेल में जाएगा ये एक इलेक्ट्रॉन, एंड दैट्स व्हाई द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1। दैट मीन्स 1 क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसको अपना फर्स्ट शेल भरने के लिए अब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट। के शेल को अगर उसको भरना है तो एक और इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, बिकॉज इन के शेल ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट। तो इसीलिए हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। दैट मीन्स एक हाइड्रोजन एटम किसी एक और एटम से रिएक्ट कर सकता है और उसका जो ड्यूप्लेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड इज हीलियम। हीलियम तो इनर्ट है, क्यों, क्योंकि इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ही के शेल में फिल हो गए। तो आपका जो के शेल है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो पूरा भर गया है। तो जब भर गया है तो हीलियम क्यों किसी से रिएक्ट करेगा, सो इट डजंट रिएक्ट विथ एनीवन, नो टेंडेंसी टू रिएक्ट, दैट मीन्स द वैलेंसी इज 0, राइट। Let's see next in the line is lithium. Lithium has 3 electrons. Those 3 electrons, how they are distributed? 2 in the K shell, 1 in the L shell. तो अब स्टूडेंट्स लिथियम को अगर अपना आउटरमोस्ट शेल भरा हुआ चाहिए तो क्या कर सकता है, वो इस एक इलेक्ट्रॉन को हटा दे। ये एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो इसका आउटरमोस्ट शेल अब पहला शेल बन जाएगा जिसमें भरा हुआ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होंगे। तो इसकी भी वैलेंसी क्या है, 1। ओके, इट विल ओनली रिएक्ट विद 1 अदर एटम एंड कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट। बेरिलियम, नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो है बेरिलियम, जिसमें है 4 इलेक्ट्रॉन्स। वो 4 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह फिल्ड है, 2 इन द के, 2 इन द एल शेल। तो अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर ये हटा दे तो यहाँ पे इसका जो ड्यूप्लेट है वो कंप्लीट रहेगा। तो इसकी वैलेंसी क्या है, 2। नेक्स्ट इज बोरॉन। बोरॉन में है 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो 5 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह फिल्ड है स्टूडेंट्स, 2 इन द फर्स्ट शेल, 3 इन द सेकेंड शेल। तो अब इस 3 इलेक्ट्रॉन्स को अगर ये हटा दे तो इसका वापस से ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इसकी वैलेंसी है 3। ये 3 और एटम से रिएक्ट कर सकता है और अपने ये 3 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर सकता है या पूरी तरह दे सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से आप दे सकते हो, यहाँ तो आप पूरी तरह ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दो जैसे सोडियम ने किया था। सोडियम गेव इट्स 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली टू क्लोरीन। ओके, either you can share also. Sharing कैसे होती है, you will study in your higher classes that 3 electrons how they are shared with other atoms. मतलब reaction तो कुछ होगा, 3 और atoms के साथ reaction होगा and so that this duplet is there. Okay, now the next one students is carbon. कार्बन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा स्टूडेंट्स, 2 4, 2 इन द के शेल, 4 इन द एल शेल। तो इसकी जो वैलेंसी होगी कार्बन की वो क्या होती है, 4। मतलब कार्बन 4 और एटम से रिएक्ट कर सकता है, मतलब यहाँ तो उन्हें ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़े, राइट। सो इफ यू रिमेंबर मीथेन, हमने ये कंपाउंड पढ़ा था मीथेन। सो कैन यू सी दैट कार्बन इज इन कॉन्टैक्ट विथ 4 हाइड्रोजन्स, है ना। कार्बन ने 4 अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स के साथ रिएक्ट किया है। तो ये क्या कर रहा है, 4 क्यों है, इसकी वैलेंसी 4 है। कार्बन 4 और एटम से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, CH4 बना रहा है, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है, 4 है, राइट। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं हाइड्रोजन के साथ। Now after carbon we have nitrogen. So nitrogen has 7 electrons. किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 electrons in the first shell, 5 electrons in the second shell. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वैलेंसी कैसे कैलकुलेट होगी, जस्ट रिमेंबर ऑक्टेट क्या होता है स्टूडेंट्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है सो या तो वो इलेक्ट्रॉन्स दे दे या फिर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, ये 2 चीजें होती है। नाउ हियर स्टूडेंट्स, if outermost shell has more than 4 electrons, किसी एटम में if the outermost shell has more than 4 electrons, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के outermost shell में 5 electrons है, उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या वो 5 electrons दे दे, नो, इट विल नॉट बी feasible। इससे अच्छा तो वो क्या करे कि ये 3 electrons को एक्सेप्ट कर ले, राइट।
8 इलेक्ट्रॉन्स करने आउटरमोस्ट शेल में, 5 तो ऑलरेडी है. To complete the octet, it just needs 3 electrons. So isn't that, important for nitrogen to accept 3 electrons rather than give away 5 electrons, right? तो 5 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ताकि 5 + 3 क्या बन जाए, 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. तो ये बहुत ध्यान में रखना है. जब आप नाइट्रोजन की वैलेंसी देखेंगे तो क्या है, 3 है, 5 नहीं है. गॉट इट? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8. ये 8 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, 2,6. ओके, 2 इन द K शेल, 6 इन द L शेल. तो अब यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन नीड्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ओनली 2. सो इट विल नॉट गिव अवे 6 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. ठीक है, तो इफ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, ऑक्साइड, ऑक्सीजन का जब आयन बनता है तो वो क्या होता है, ऑक्साइड आयन O2- बनता है. 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तब वो स्टेबल हो जाता है, पर वो आयन बन जाता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं. गॉट इट? नाउ फ्लोरीन, नेक्स्ट इज फ्लोरीन विच हैज 9 इलेक्ट्रॉन्स, 2,7. तो फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इट नीड्स ओनली 1 electron. So that's why its valency is 1. Got it? And finally we have neon. Neon has 10 electrons. How is the distribution? 2,8. Now does it need any more electrons to complete the octet? No, the octet is already complete. यहाँ पे second shell में 8 electrons achieve हो गए हैं. That's why neon has a valency of 0. It will not react with any atom because it is fully filled. It is already stable. Got it? So these were the valencies of the first 10 elements. You need to understand the valencies of the next 10 also. So this is an assignment for you. Next 10 जो elements है 11 to 20, इसकी valency, उन elements की valency क्या होगी ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है? So do it on your own. Let's have a look at the outcome. So what we have learned, students, in this particular video lesson, students, we talked about the Bohr's atomic model. तो atom model जो नील बोर ने दिया था उसको हमने स्टडी किया था. And finally we understood how the electrons are distributed in an atom, and the concept of valency was also explained to you. So now is the time that we assess your progress. Let's have a look at the quiz. So let's see some of the quiz questions, students. The first one is, the maximum number of electrons that can be accommodated in the third shell or orbit of the atom. The third shell we can find out by the 2n square rule. What is the 2n square rule? Put n equal to 3. यहाँ पे आपसे third shell की बात हो रही है. So 2 into 3 square. 3 square is 9 and 9 2s are 18 electrons. So the total maximum number of electrons which can be accommodated is 18. Got it? The electronic configuration of the element with atomic number 15. So we discussed till atomic number 10. हमने first 10 elements की बात की थी. हम उसके आगे चलते हैं. 15 electrons है. We can do it very easily. So the first shell KLM. Out of 15, the first 2 electrons will go in the K shell. Then after that, we are left with 13 electrons. So 8 electrons will go in the second shell. So 8 plus 2 is 10. How many are left? 15 minus 10, 5. So rest 5 electrons will go in the third shell. So what is the electronic configuration? 2, 8, 5. This is how we write. Electronic configuration इस तरह comma लगा के लिखते हैं students. 2, 8, 5. Got it, students? तो ये आपको distribution याद रखना है. First shell में 2, next shell में 8, then third shell में 18 होते हैं, but 8 और outermost shell में 8 होने चाहिए. This is something atoms want to achieve. Let's move on now. Number of valence electrons in chloride ion. So this one is very interesting now. Mark it important, students, okay? So valence electrons in chloride ion. Now let's see the chlorine atom. First of all, chlorine atom. How many electrons are there, students? You should remember this thing, the atomic number.
17 electrons are present in chlorine atom. So what will be the electronic configuration here? 2, 8, 7, right? 17 electrons are distributed like this. Now in its outermost shell, क्लोरीन एटम के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वैलेंसी क्या हुई क्लोरीन की? 1. दैट मीन्स इट विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल चेंज टू क्लोराइड आयन. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जब वो एक्सेप्ट करेगा, सो आफ्टर एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस टू KLM. ओके, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2, 8, 8. यहाँ पे थर्ड शेल में, लास्ट शेल में क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो अब क्लोराइड आयन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने स्टूडेंट्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्लोराइड आयन के? द आंसर इज 8. ओके, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. यहाँ पे आप ये भी कंफ्यूजन कर सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, है ना? तो 18 भी आंसर आप कर सकते सिलेक्ट, बट यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, मतलब आउटर मोस्ट शेल में क्लोराइड आयन के कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज इक्वल टू 8. All right, my dear students, so here we come to the end of the discussion of this part 2. So hopefully now you understand how electrons are distributed in an atom. The rules for the distribution, please remember those and you will never get anything wrong. So students, in the next lesson, in the next video lesson, what we'll study? We will study about atomic and mass numbers. We will also understand what are isotopes and isobars. But before that, you have to revise all of it, whatever we have done. Then only you will be able to understand the next sessions. Thank you so much for watching, students. Take care.